probably what we are going to have in our examination that we're going to discuss today, and we're going to practice some questions over it. Okay, so what is important here that we're going to discuss? So first of all, in the whole acid, base, and salt chapter, where the students are going to discuss, we're going to discuss that one. Along with, we'll discuss some important portion of this chapter. So, for example, baking soda is preparation of baking soda and preparation of bleaching powder is very important. Okay, so we need to discuss that one. That how we can prepare baking soda, how can we prepare bleaching powder? That is important. Got it? Are you getting my point? So first of all, how is bleaching powder prepared? The question is going to come baking soda and baking soda, washing soda difference. Okay, how baking soda can be converted into baking soda. Okay, and the other type of questions are going to come in these portions. So moreover, along with that one, the caustic soda, the alkali process is very important. You must know the preparation of chloralkali process, which gas is produced at anode, which gas is produced at cathode. So we're going to discuss that one. Got it? समझ आया? Got it. आज 2 घंटे का है. No, एक ही घंटे का है. तुम्हारा एक ही घंटे का. Okay. So Okay. we're going to discuss. Next important thing. Let's discuss. Okay. सर आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लास्ट टॉपिक नहीं पढ़ाया, डिटर्जेंट्स. वो भी पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है. So chloralkali process. These are important parts, and let's discuss the very important questions on this chapter. Okay. Moreover, along with this one, the student usually stuck in acidic strength. And what is acidic strength? We're going to discuss that one. Acidic strength, like for example, how does the effect of means how does the concentrations effect increases or decreases on increase in or how does the pH of a solutions increases or decreases on decrease in H plus ion concentration? ये सब important. This is very important. Like for example, अगर मैं pH, if I increases the pH, okay, then the H plus ions concentration will decreases. H plus ion concentration will decreases. So you know that as we lower down the pH, the H plus ion concentration increases it, because you know that H plus ion concentration is directly proportional to acidic strength. More the H plus ion concentration is directly proportional to acidic strength. Is directly proportional to acidic strength. Okay, so that is very important. So you need to concentrate on that one. Okay, समझ आया? Got it? So pH, H plus ion concentration, acidic strength, these are all important and we need to discuss that one. So first of all, let's revise the preparations of very important salt. Like for example, first one is caustic soda. Caustic soda, as you know that caustic soda is NaOH and it is being prepared when we passed NaCl and concentrated brine will be used for this word. Concentrated brine solution. What is this word? This is concentrated brine. Concentrated brine. We call it brine. Brine is a solution of simply we can say that when we mix water and NaCl and when we pass electricity to it, then it will gives you NaOH, which is caustic soda. Oh, sorry, which is this is caustic soda plus hydrogen gas plus chlorine gas. And you need to keep in mind that which gas is produced at anode. Since hydrogen ions are positively charged, so they will hydrogen gas is produced at cathode and chlorine gas at it will be produced at cathode, and this will be chlorine gas is negatively charged, so it will be produced at anode. So you need to keep in mind that, okay, that it will produce at anode and it will produce at cathode. So don't get confused with this one. Secondly, the important thing is that the chlorine gas that is being produced here, it is also used for the preparation of bleaching powder. So here, if chlorine gas is here and if we are having calcium hydroxide, which is called slaked lime, okay, slag lime. So when we called it slag lime, the slag lime and lime water have same formula. It is also called lime water. So lime water and slag lime, when we pass chlorine gas. So the interconnected questions are going to come in your examination, that what would happen if we pass chlorine gas to lime water. Okay, so it will gives you calcium oxychloride, which is called bleaching powder. Its chemical name is calcium oxychloride.
chloride plus water. Got it? You understood? Okay. Understood. So this is the very important portion that we need to discuss. Secondly, uh, preparation of caustic soda, and most important, very importantly, is the is this simply baking soda. Baking soda is sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate, which is called baking soda, and this baking soda is simply prepared when we have sodium chloride and water, which is called brine. And when we pass brine with ammonia gas to it, it become ammonical brine. This is called ammonical brine. Ammonical ammonical brine. And when we pass carbon dioxide to it, then it will gives you sodium hydrogen carbonate, which is called baking soda. It's a form white PPT, precipitate is formed, and it is called baking soda. Baking soda. Along with we will have ammonium chloride, NH4Cl. It is not in the PPT form. It is in aqueous. It is in soluble form. It is in the dissolved state. Now, very importantly, this is the simple preparation of baking soda that we called it Solvay process. Solvay process. This is baking soda is prepared. Now, this baking soda, when heated, you need to keep in mind that so many questions are being asked that would happens when baking soda, a compound X, which is a salt of sodium, when heated, it gives a salt B, दूसरा salt दे देता है. So you need to keep in mind कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो हमारे सिलेबस में है और उसको हीट करने पर हमें एक दूसरा सॉल्ट मिलता है. हीट करने पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सॉल्ट है बेकिंग सोडा, जिसको हीट करते हैं तो हमें दूसरा सॉल्ट मिलता है विच वी कॉल्ड इट वॉशिंग सोडा. So this is sodium hydrogen carbonate, and when we have this is NO2CO3. When we heat it, you will get carbon dioxide and water, and this is called when we heat it. On heating, it will give you like this. Got it? Understood? समझ आया? So this is the way that on heating sodium hydrogen carbonate, it will gives you uh, uh, big, means caustic soda, sorry, washing soda. But it is an anhydrous form which is not carrying water of crystalline. But when we gives proper washing soda बनाने के लिए, what we need to add 10 water of crystalline to it. Na2CO3 plus 10 water molecule will gives you Na2CO3 dot 10H2 आपको देगा. सो ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसको हीट करने पर आपको अच्छा, ये भी क्वेश्चन केम्स इन एग्जामिनेशन दैट what is how can you distinguish between baking soda and washing soda on heating upon heating. So when you heat baking soda, when you heat baking soda, then a gas will be evolved which we called it CO2, carbon dioxide gas will be evolved. Okay, carbon dioxide gas will be evolved. So we'll simply say that when carbon dioxide gas is evolved, okay, we simply consider that when we heat baking soda, carbon dioxide gas will be evolved. But when we heat washing soda, no carbon dioxide gas will be evolved. Like for example, this is the washing soda and soda. So CO2 will be evolved in this case. What? Because if you heat, if you so yes, you done. So this is called washing soda. So Na2CO3 dot plus 10H2 will gives you Na2CO3 dot 10H2O. So when you heat washing soda, washing soda Na2CO3 dot 10H2O, simply the water of crystalline will be removed. इसका water of crystalline खत्म हो जाएगा, Na2CO3 खत्म हो जाएगा. Okay, but carbon dioxide will not. No CO2 will be released. No CO2 will be released. समझ आया? कोई CO2 रिलीज नहीं होगी. तो इसका एक स्क्रीनशॉट या एक क्विक नोट के लिए टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन प्लीज. This one and this one. ले लिए. ले लिए. ले लिए.
Okay, so let's discuss this one at further. So this is the very important part. This is the very important part that we generally going to have large number of questions over this two salts. Okay, most probably. Second, एक important gas की बहुत ज्यादा बात होती है जब भी word effervescence यूज होगा, effervescence word यूज होगा, effervescence या brisk effervescence, it is CO2, indicating the release of, CO2, हाँ, रिलीज ऑफ CO2। आंख मीच के CO2 की बात करेंगे, हाइड्रोजन गैस में कंफ्यूज नहीं होना। ब्रिस्क एफरवेसेंस मींस इट विल बी द रिलीज ऑफ CO2 गैस, समझ आया? yeah, सो yeah. लेट्स डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, जो जहां पर स्टूडेंट ज्यादातर मिस्टेक करेंगे, सो लेट्स डिस्कस दैट वन, समझ आया? सो Yeah. लेट्स हैव जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। Yes, Zuha. Please start doing these questions. Question number 15 is very important. Let's discuss this one. The most of the students might get stuck in this portion. So, and this is since this is an important question, so let's discuss that one in detail. So what is that actually? In question number 15, what we are going to discuss? What is saying in the question? It is saying a salt is produced by the reaction between acid and base. So you know that acids and base, when they're going to react, they simply going to give you salt and water. आइडेंटिफाई द सॉल्ट्स, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस बताइए इसमें कि कौन से एसिड और कौन से बेस से मिला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको तुम ऐसा समझ लो कि हमारे पास जो नॉन एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास है एस्ट्रोसोफोर, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद है। अगर मैं तुमसे तीन चार एसिड्स की बात पूछूं तो तुम सिंपली बोलोगे सर एक तो एस्ट्रोसोफोर है, सेकंड वन इज HCl, एक बोल दोगे HNO3, और एक तुम बोल सकते हो CH3COH इथेनोइक एसिड, जो कि बहुत कॉमन एसिड्स है, जो मतलब ये आप नॉर्मली इन एसिड्स का नाम, और इन्हीं में से आएगा। ठीक है, एक एक और होता है H3PO4 और H2CO3, ये है कार्बोनिक एसिड, इससे आपको कार्बोनेट ग्रुप मिलेगा, और H3PO4 से आपको मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप। समझ आया? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमसे सल्फेट आयन पूछा है, सल्फेट आयन अगर हमारे पास है तो वो कौन सा एसिड से आएगा? जाहिर सी बात है H2SO4 से आएगा। अगर Cl है तो वो किससे आएगा? Cl से आएगा। अगर नाइट्रेट NO3 ग्रुप है तो वो किससे आएगा? NO3 से आएगा। अगर HCOH है, CH3CO है, तो फिर किससे आएगा? इथेनॉइक एसिड से आएगा सिंपली। अगर PO4 ग्रुप है तो किससे आएगा? H3PO4 से। अगर CO3 है तो कार्बोनेट है तो किससे आएगा? इट विल कम फ्रॉम H2CO3। इनमें से ये जो एसिड्स हैं ऊपर के तीन, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, और बाकी के ऑल आर वीक, इंक्लूडिंग दिस ऑल आर वीक, दीज आर ऑल वीक एसिड्स, ये वीक एसिड्स हैं, ये वीक एसिड्स हैं। ठीक है, तो so this one is if I'm talking this one, so नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें NaOH की और KOH की, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और Na किससे आएगा? NaOH से आएगा। और K किससे आएगा? KOH से आएगा। बाकी के बेस जैसे MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, these all are positively charged ions come from base, and negatively charged ions like SO4 minus, Cl minus, HNO3 minus, CH3, these all come from negatively charged in this salt, negatively charged part। एक salt के अंदर एक positively charged ion होता है, एक negatively charged ion होता है। The one which is positively charged, it came from simply from positively charged आता है base से, और negatively charged आता है acid से।
सो Na and KOH आर स्ट्रॉन्ग बेस, अदर जो है वो जनरली दे आर वीक वीक बेस, दीज आर वीक बेस, ठीक है, वीक बेस। अब आपको सिंपली पता है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव अ न्यूट्रल सॉल्ट, या वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव अ न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन अगर सिंपली मैं बोलूँ कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एक वीक बेस के साथ रिएक्शन, जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस के साथ इफ इट इज रिएक्टिंग तो सिंपली इट विल गिव एन एसिडिक सॉल्ट। और अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वीक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो बेसिक सॉल्ट देगा। इट इज क्लियर टू यू? क्लियर? सो लेट्स यू राइट एंड प्लीज राइट द नेम्स ऑफ दो सॉल्ट्स कि यहाँ पर किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। और फिर बाद में ये भी कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट हैज बीन फॉर्म्ड। एंड बी क्वेश्चन में पूछा है इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव पीएच लेस देन 7। अब पीएच लेस देन 7 किसका होगा? जाहिर सी बात है पीएच लेस देन 7 जो होता है वो एसिड्स का होता है, और एसिडिक सॉल्ट का ही पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। सो यू नीड टू फाइंड आउट एंड प्रेडिक्ट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। सो स्टार्ट डूइंग दिस वन, जल्दी से करो। Yes, Zoha, you done this one? So it is very simple Right. that if you are getting Na, you will get sulfate ion SO4, so it will be NaOH, NaOH and H2SO4 simply. Will it be like this? Hmm? उसके बाद NaNH4Cl. So NH4Cl means NH4 will come from Na and NH, ठीक है, इससे आएगा दूसरा, and Cl will come from, hmm? Cl will come from HCl. Got it? उसके बाद KNO3, K will come from KOH and NO3 will come from HNO3. And similarly, Na will come from NaOH and Cl will come from HCl. Got it? But if I ask you that which of the following will gives you the acidic salt, that is very simple. Like you see that Na strong, H2SO4 is strong, NaOH strong है, H2SO4 strong है, तो neutral salt. सिर्फ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, you see that ammonium chloride is weak base, ammonium hydroxide is a weak base. So अगर देखो Na और K नहीं है, Na और K नहीं है यानी पोटेशियम के, तो कोई भी सॉल्ट होगा वो नेगेटिव, वो कैसा होगा, इट विल बेसिक। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है, वो ये है कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट जो कि टूथ इनेमल में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 होल ट्वाइस, ये एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन भी है। कैल्शियम फॉस्फेट अगर तुम देखोगे तो मैंने कि इसको मैंने वीक बेस में इंक्लूड किया है कैल्शियम को, और फॉस्फेट को भी मैंने वीक बेस में इंक्लूड किया है, ठीक है, दोनों को वीक बेस में, तो होना चाहिए था न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कुछ मसला ऐसा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट सो वीक नॉट सो स्ट्रांग। तो जब ये बहुत वीक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैसा सॉल्ट बनाता है? ये बनाता है बेसिक सॉल्ट। समझ आया? ये वीक एसिड है, H3PO4 इज वीक एसिड। तो अगर ये वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन H3PO4 के साथ कराता हूँ, H3PO4 के साथ कराता हूँ, तो ये मुझे देगा CA3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2O। और ये जो सॉल्ट होगा ये होगा बेसिक इन नेचर। अब तुम कहोगे सर ये तो सर एकदम एसिडिक है, सर ये तो वीक बेस है, वीक बेस बटन, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह act कर रहा है। यहाँ पर इसके सामने वीक एसिड के सामने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह रिएक्ट करता है। लेकिन अगर मैं यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन
HCl या H2SO4 के साथ करा दूं, HCl के साथ करा दूं, तो ये क्या देगा, कैल्शियम क्लोराइड देगा प्लस वाटर। अब यहां पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने इट विल बिहेव लाइक अ वीक बेस। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये समझ लो कि ये ऐसा वो है कि जो मतलब वीक के सामने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग के सामने वीक है बीच में। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड विल बी कंसिडर्ड एज एसिडिक सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। बाकी सब जगह पर बाकी जो मैंने लिखवाया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, अगर वीक के साथ कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग के साथ कर रहा है तो एसिडिक। तो यहाँ पर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का एक केस है जहां पर सॉल्यूशन विल बी, ये वीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक एंड HCl इज स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए यहाँ पर ये जो होगा दैट विल बी द बेसिक सॉल्ट होगा, सॉरी एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट होगा। तो दिस विल टर्न्स दी, मतलब इसका पीएच जो होगा दैट विल बी द लेसर देन 7, सो इट इज एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट। अंडरस्टूड, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 ml पर पोटेशियम सल्फेट, पीएच ये सब कर लोगे तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर, मेटल कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद डाइल्यूट रिसर्वोयर एंड गिव, देखो यहाँ पर फिर से बात आ गई ना, एफरवेसेंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात चल रही है। और ये मत सोचना कि एकदम से जैसे होता है ना, एकदम से मतलब वी शुड स्टार्ट गिविंग द आउटपुट लाइक अभी से मुझे एकदम फटाक से आंसर देना, वी डोंट नीड टू थिंक एनी मोर एंड फटाक से आंसर। मेटल, मेटल ही बस पढ़ा, मेटल रिएक्ट विद H2SO4, तो एकदम सोचोगे मेटल जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो बस हो गया हाइड्रोजन गैस। आगे का पढ़ना ही नहीं है, ये मेटल नहीं बोल रहा है, आगे पूरा पढ़ो, मेटल कंपाउंड बोला उसने। So it can be metal oxide, it can be metal carbonate, it can be metal hydrogen carbonate, it can be metal anything। metal के साथ जितने कंपाउंड बनते हैं वो सब हो सकते हैं, समझ आया? Got it? So if I'm saying a metal carbon compound X react with dilute H2SO4 and giving you effervescence, effervescence एकदम समझ जाओ कि CO2 की बात चल रही है। अब CO2 कब मिलता है, कौन किसके साथ मिलता है? When metal carbonate are going to react with metal carbonate या metal hydrogen carbonate एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, समझ आया जोहा? Are you getting my point? So whenever it is a general reaction, whenever metal carbonate, any metal carbonate or any metal hydrogen carbonate, metal hydrogen carbonate, when they react with acids, when they react with acids, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड दे विल गिव यू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, समझ आया? दे विल गिव यू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो CO2 है, ये CO2 किस में जाएगी, ये, और फिर बोलेगा आगे स्टील एक्सटिंग्विश कैंडल के कैंडल को जला, तुम सोचोगे कैंडल का जिक्र करते ये नहीं पढ़ा गया, एक्सटिंग्विश कैंडल सही से नहीं पढ़ा। एक्सटिंग्विश कैंडल बस ये सोचा कि कैंडल आया, कैंडल अच्छा वो तो हाइड्रोजन गैस, बर्निंग कैंडल को पॉप साउंड से रिलेट कर दो, कैंडल का भी जिक्र हो गया तो पक्का ये हाइड्रोजन गैस है, नहीं। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम सल्फेट, अब इसने इंडिकेट कर दिया कि इसमें जो एक कंपाउंड है वो कैल्शियम सल्फेट बना है, तो जाहिर सी बात है सल्फेट ग्रुप किससे आया होगा, कैल्शियम सल्फेट बनाने के लिए जो सॉल्ट बना है वो सल्फेट ग्रुप किससे आया होगा, H2SO4 से। तो कैल्शियम किससे आया हुआ, इसका मतलब जो मेटल है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, समझ आया? यू गॉट इट दोहा? Okay. So calcium, just like for example, if I'm just writing this one here, like for example, it is saying metal carbonate. We don't know that is metal carbonate, and when it is going to react with let H2SO4, it will gives you salt. Salt देगा, salt का हमें नाम नहीं पता, लेकिन उसने कहा कैल्शियम सल्फेट देगा, तो जाहिर सी बात है सल्फेट ग्रुप कहाँ से आया हुआ है, यहाँ से, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जनरल रिएक्शन हो गई, वो तो देगा। तो फिर यहाँ पर ये कौन सा सॉल्ट होगा, जाहिर सी बात है ये कैल्शियम का सॉल्ट होगा। अब कैल्शियम का कौन सा सॉल्ट होगा, क्योंकि इसने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, जब यहाँ पर कार्बन डाइ होगा, कार्बन होगा, कार्बन कब हो सकता है, मेटल कार्बोनेट्स में हो सकता है, तो इट विल बी CO3, समझ आया? और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन बी बोथ, एनी वन ऑफ देम, समझ आया? अंडरस्टूड? यस और नो? जोहा Okay. समझ आया? तो प्लीज, और उसके बाद आगे कह रहा है कि गैस बोल्ट कैन राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दोगे, उसके बाद नेम वन एंटी, बी कह रहा है नेम, ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल, नेम वन एंटासिड्स, कोई भी एंटासिड्स। अब कई बार बच्चे ना कंफ्यूज आते हैं इसमें, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो एंटा एसिड्स को ना वो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो मतलब व्हेन दे आर रिप्रेजेंटिंग द एंटा एसिड, वो समझते हैं एंटा एसिड मतलब एसिड, एसिड है वो। कहीं एक मतलब क्वेश्चन आता वही है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। हाँ, कोई बेस हुआ जैसे कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। हाँ, एंटा एसिड्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे एक क्वेश्चन था, कई कई,
तो MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कोई भी एंटासिड। नेम वन एंटासिड, इट इज मैग्नीशियम, कोई भी वीक। ज्यादातर एंटासिड में हम लोग बेकिंग सोडा को यूज करते हैं बिकॉज इट इज अ बेसिक सॉल्ट। समझ आया? तो एंटासिड में सॉल्ट विच इज यूज्ड एज इंडाइजेशन इन स्टमक, हम लोग बेकिंग सोडा को कई बार यूज भी करते हैं, या फिर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज कर सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एन स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब बिल्कुल वीक भी बेस नहीं है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो दैट्स व्हाई। सेकंड, अ फार्मर ट्रीट अ सॉइल विद क्विक लाइम, विद क्विक लाइम से रिएक्ट करता है क्योंकि कैल्शियम, क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्यों बोला इसने? अब खुद देखो, कैल्शियम कार्बोनेट क्यों बोला? बेसिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट क्यों बोला? अब देखो ध्यान से, इफ यू आर इफ यू आर हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट, look at this, if you are talking about the calcium carbonate, so in this calcium carbonate this is calcium hydroxide। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब बनेगा? जब कैल्शियम, अगर हम लोग ले लें कैल्शियम की रिएक्शन, अगर हम लोग किसी कार्बोनेट ग्रुप H2CO3 से करा दें, ये वीक एसिड है, कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। और अगर मैं बोलूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वीक है, तो ये तो न्यूट्रल सॉल्ट बनना चाहिए ना कैल्शियम कार्बोनेट, इट शुड बी न्यूट्रल। हाँ। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड के सामने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर, इसलिए ये बेसिक इन नेचर होता है। समझ आया? समझ आया? यू अंडरस्टूड? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड यहीं पर क्वेश्चन था, एंटासिड्स में कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स आर अगेंस्ट द तो एसिड वही टेकन। मुझसे लोग एंटी से पूछे तो मैं क्या सिर्फ बेकिंग पाउडर लिख दूं NaHCO3? हाँ, बेकिंग पाउडर लिख सकते हो। वो क्वेश्चन में देखो, मैं एक क्वेश्चन किस तरह से आएगा एंटासिड में बताता हूँ। बोलेगा कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा सब्सटेंस रिवर्स कर देगा प्रोसेस को? तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, और उसके अंदर मतलब रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब एसिडिक है, तो उसके अंदर बेस डालना पड़ेगा, तभी तो वो न्यूट्रल करेगा उसको, ये न्यूट्रल कर सकता है, तो बेस डालना पड़ेगा। वो एक ऑप्शन दे देगा आपको, लाइम। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, लाइम सोचेंगे लाइम इज लेमन जूस। लाइम इज नॉट लेमन जूस, लाइम इज कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो कई बार हम लोग लाइम भी डाल सकते हैं उसके अंदर। समझ आया? या फिर वो ऑप्शन दे देगा आपको कुछ और, मतलब 3 एसिड दे देगा आपको, और एक दे देगा आपको ऑप्शन एंटा एसिड, यानी एक HCl दे देगा आपको, एक CH3COH दे देगा, एक और कोई और सा एसिड दे देगा, लेकिन एक एंटासिड दे देगा। तो कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइम में और एंटासिड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंटा एसिड्स आर बेस एंड लाइम इज ऑल्सो बेस। लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, नॉट इन लाइम, लेमन जूस नहीं है वो। समझ आया? इट इज तो नॉट मतलब कि लेमन लाइम जूस। डालना है, लाइम चूज करना है। हाँ, लाइम चूज करो अगर एंटासिड नहीं दे रखा तो। अगर एंटासिड भी दे रखा है, लाइम भी दे रखा है, तो बोथ एंड बी ऑप्शन होगा जरूर, क्योंकि दोनों ही बेस है। समझ आया? तो ये हमें याद रखना है, क्विक लाइम और लाइम इज कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों एक ही है। समझ आया? क्विक लाइम और लाइम। अब लाइम जूस है, अगर लाइम जूस लिखा है, स्पेशली लिखा है लाइम जूस, क्या आगे वर्ड लिखा है जूस, देन इट इज लेमन जूस, तब वो एसिडिक है। ये थोड़ा थोड़ी चीजें समझ लेना। लाइम, ठीक क्विक लाइम एंड लाइम जूस। लाइम जूस इज लेमन जूस एंड इट इज एसिडिक इन नेचर, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। समझ आया? ठीक है। उसके ठीक बाद है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाई डज द फार्मर ट्रीट विद दिस सॉइल्स, इस तरह से क्यों करेगा, सॉइल से क्यों करेगा, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। उसके बाद एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट वही हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट बोलते हैं, फिर से रेस्पेक्टिवली द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। चलो ये इसका 12th का बी पार्ट करके बताओ तो, 12th का बी पार्ट, 12th का बी पार्ट। ओके। मतलब हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन तो एसिडिक के पास होता है ना, एसिडिक सॉल्यूशन के पास।
या अभी चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन, दी हाईएस्ट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी टेक प्लेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। खुद ही पता है कि जितना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना ही ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और पीएच हाँ जितना कम होता है उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो जितना लोअर द हाँ पीएच, आप खुद बोल सकते हैं ना कि किसी, मैंने तुम्हें क्लास में भी पढ़ाया है ये चीज, कि इफ यू आर हैविंग सेइंग दैट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 2, देन उसके अंदर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻²। पीएच अगर 6 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁻6। अब जाहिर सी बात है 10⁻⁻6 इज लेस देन 10⁻²। 10⁻², is 0.01, and 10⁻6 is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So 10⁻6 is less than 10⁻². तो इसलिए higher the value of pH, lower will be the H plus ion concentration. समझ आया? हाँ हाँ हाँ। तो higher the value of pH, lower, sorry, higher the value of pH, हाँ, उतना ही कम H plus ion concentration होगा। ओके, क्योंकि अगर हायर पीएच वैल्यू हो तो बेस हो गया ना। हाँ, हायर पीएच वैल्यू हो गई तो बेस हो गया, बेसिक हो गया, बेसिक हो गया तो H प्लस आयन तो है ही नहीं उसमें, मतलब है लेकिन हाँ कम है। एवरी बेसिक सॉल्यूशन है, देखो मैं अभी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में है कि डू द बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस आयंस? यस, द बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हाँ हैव H प्लस आयंस। यस। अगर मैंने बोला कि लेकिन पीएच अगर 10 लेकिन है, OH माइनस, लेकिन OH माइनस आयन को ज्यादा ओवर पावर कर देता है। आई हैव हम्म, दिस इन माय नोट्स। हाँ हाँ, तो H प्लस आयन अगर पीएच 10 है तो H प्लस आयन कितना हुआ, 10⁻⁻10, तो है तो सही, बस, लेकिन यहाँ पर बेस होगा वो। तो चलिए, क्या था क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट में हमारे पास था क्वेश्चन, will you be given the three solution A, B and C with pH value 2, 3 and 13 respectively? Which solution has the highest H plus ion concentration? तो इतना सिंपल सी बात है, 2 में ज्यादा होगा among द 3, और एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन से सिंपल आसान है। अभी हम लोग चलो ठीक है। इसी पे ये वाला जरा मुझे क्वेश्चन में ये पार्ट करके बताओ, कौन सा क्वेश्चन? और सी वाला। ये दोनों, टेंथ का सी एंड सेकंड पार्ट। ठीक अरेंज द फॉलोइंग फोर सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द H plus ion concentration। जल्दी से फटाफट से करें सब। हो गया। हो गया। यस, यहाँ पे कह रहा है यू हैव फोर सॉल्यूशंस ए बी सी डी। यस, तो सबसे पहले पीएच ऑफ ए, ए A6। का पीएच सबसे कम है तो उसके अंदर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। हाँ, और फिर फिर D7, फिर B9, फिर तो C12। अरेंज अरेंज द फोर सॉल्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। सो सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो जाहिर सी बात है, C12। सिंपल सी बात है ना। आपको कंफ्यूजन इस चीज से हो सकता है कि आपसे बोला जाए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग लगाइए, तो सिंपल आप क्या करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाए ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में लगा दीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच मतलब सबसे पहले 12, यानी सी। सी में सबसे कम H प्लस आयन कौन सा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी पहले ये सी, उसके बाद फिर बी, B9, बी 9, फिर उसके बाद फिर डी D7। एंड देन ए। हाँ तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सिंपल है, अगर बोला जाए कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के, तो अगर उसने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लगाइए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पीएच लगा दो, खत्म हो गया।
तो ये देखो 9 का सी पार्ट वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसको। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला फूड, वॉशिंग सोडा, क्वेश्चन नंबर 9 and 10। केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है जो कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा कॉपी में भी लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग दिस क्वेश्चन इन नोटबुक, या नोटबुक में नहीं भी लिखो तो चलो सॉल्व करो, मतलब इस शॉर्टकट में लिखो, यू हैव ट्राइड इट इन द शॉर्टकट सो दैट ओके, डू दिस वन, नोट इट डाउन। हुआ? ये वो वाला है ना? आई रिमेम्बर किसी चीज से कोई एक सबसे वो पहले बोला मेटल अरे सॉल्ट ए, विच इज, या विच इज ब्लू इन मुझे पता कलर, है, या मुझे पता विच है। इज, विच इज ब्लू इन कलर, तो ब्लू कलर मतलब क्या हुआ? इट विल बी कैल्शियम, कैल्शियम.5H2O। इट विल बी देखो था। CuSO4 डॉट 5H2O। हाँ, समझ आया? आई नो। हाँ, कैल्शियम सल्फेट.5H2O। इसको हीट करेंगे तो ये हमें देगा CuSO4 विच इज वाइट इन कलर, प्लस 5 वाटर क्रिस्टल खत्म। हाँ अब इसे बताओ ए क्या है हमारे पास, ए तो सिंपल हो गया, ये हो गया, बी क्या है इसमें हाँ, बताओ, सी एस ओ बी क्या फोर है? सी ध्यान एस से ओ पढ़ो, फोर CSO4 बी है। तो नहीं नहीं, व्हाइट पाउडर है वो, तो फिर सी एस ओ फोर बी है, क्योंकि फिर सी एस ओ फोर व्हाइट पाउडर है बेसिकली। उसने बोला व्हेन अ सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली, when a salt A is heated strongly over a burner, then B substance present in it eliminated, खत्म हो जाता है, and a white फाइव powder एच is टू ओ C। 5H2O। Yeah, this is B and this is C। अब आइए क्या कह अच्छा। रहा है, लेफ्ट बिहाइंड इफ द फ्यू ड्रॉप ऑफ D is added to powder C, तो दोबारा से 5H2O। अगर आपने अगेन वाटर्स में डाला तो फिर से इट विल गिव्स यू CuSO4 which is blue in color। तो D and हाँ, B are same, D and B are हाइड्रस और same। अनहाइड्रस है ना? hmm it will हाइड्रस और become, अनहाइड्रस। it will become like this। ओके। So identify A, B, C, D. So here B and D is water. A is calcium sulfate pentahydrate and anhydrous calcium sulfate is sorry copper. Calcium कहाँ से आ गया यार? Sorry. It is copper sulfate, not calcium sulfate. Ca, नहीं not Ca. It is Cu. Copper sulfate pentahydrate। समझ आया? अच्छा सर, फिर सी का आंसर क्या होगा? C is calcium sulfate, anhydrous calcium sulfate। नहीं नहीं, सी सेवेंथ क्वेश्चन का सी पार्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट व्हिच आल्सो शोज अबव प्रॉपर्टी। अभी बताता हूँ। उसके बाद कह रहा है सेवेंथ क्वेश्चन का C1, गिव एन एग्जांपल ऑफ द सॉल्ट व्हिच आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच आल्सो शो द अबव प्रॉपर्टी, जिसमें कोई दूसरी मतलब कोई ऐसा सॉल्ट बताओ जिसमें और भी ऐसी प्रॉपर्टी हो, जैसे Fe फेरस सल्फेट डॉट 7H2, FeSO4, डॉट 7H2O, इट इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो हल्का सा हीट करने पर इट विल बिकम FeSO4। ठीक है, प्लस फिनिश। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन खत्म, अब ये फिर से व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट इन कलर। तो फेरस सल्फेट भी विच इज ग्रीन इन कलर व्हेन यू हीट, हाँ अगर फेरस सल्फेट को फर्दर आपने हीट किया स्ट्रांगली देन विल डिकम्पोज
और ये अगर आपने फर्दर हीट किया तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू FeSO4 को फर्दर हीट किया तो इट विल गिव्स यू Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा गैसेस। समझ आया? तो फर्दर हीट करते हैं फेरस सल्फेट को तो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन हल्का सा हीट करोगे तो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाइट कलर FeSO4। समझ आया? ये भी व्हाइट कलर का होता है। मतलब एनहाइड्रस फॉर्म में ज्यादातर सॉल्ट्स व्हाइट कलर के होते हैं। समझ आया? ओके। जिंक की रिएक्शंस लिखो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जिंक जब एल्यूमिनियम के साथ मिलता है तो जिंक एल्यूमिनेट हो जाता है ना, एल्यूमिनेट होता है। इट इज एल्यूमी जिंक व्हेन रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ तो क्या बनेगा बताइए। दूसरा है कि जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया। थर्ड ये है कि जिंक अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताइए। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू इट प्लीज। सर पहला वाला जिंक एलिमिनेट नहीं होगा? पहला वाला जिंक एल्यूमिनेट नहीं होगा बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, देयर विल बी नो रिएक्शन। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस हियर, नो रिएक्शन। ओके, ठीक है। फिर जिंक। सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिंक व्हेन रिएक्ट विद NaOH इट विल गिव्स यू सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। समझ आया? उसके साथ साथ मैंने पहले भी पढ़ाया है कि अगर आप ऐसे लिखते हो कि जिंक नाइट्रेट, जैसे ये मेटल है और ये एसिड है, मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड टू गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंक डू नॉट रिएक्ट विद HNO3 टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर द टू मेटल्स that can हाँ हाँ produce हाँ। hydrogen gas on reaction with HNO3 because HNO3 is a strong oxidizing agent, it oxidizes the hydrogen to produce। दूसरे तो यहाँ किसी से भी रिएक्ट नहीं करते सिवाय मैंगनीज और मैंगनीज, राइट? NO2 बना देगा, NO2 बना देगा। तो इस तरह से रिएक्शंस होगी होगी तो रिएक्शंस, लेकिन it will not produce, no production of hydrogen gas will take place, no production of hydrogen gas, production of H2 gas will take place in case when HNO3 is going to react, when magnesium के साथ या manganese के साथ HNO3 react करता है then it is going to produce, if HNO3 is going to react with magnesium or manganese then it will forms magnesium nitrate MgNO3 whole twice plus hydrogen gas will be produced here। समझ आया? So note it down each and everything that is we are just mentioning here, and please I will send it to you this question paper so that you can understand each and everything। Got it? गॉट इट। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है ये हम लोग कर चुके हैं इक्वल लैम्प मैग्नीशियम रिबन को। उसके बाद है बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस NaOH के जिंक ग्रेन्यूल के साथ, देखो बहुत बार है, इंपॉर्टेंटली है तो भूलना नहीं, सोडियम जिंकेट बनता है और सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2 और सोडियम एल्यूमिनेट होता है NaAlO2। इसमें टू मत लगा के आ जाना, यहाँ पर टू नहीं होता है। when NaOH is going to react with aluminium then it produce hydrogen gas plus sodium aluminate NaAlO2, तो यहाँ पर टू नहीं होता है। बट इफ
जिंक इज रिएक्टिंग देन विल गिव you Na2ZnO2, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट इज ठीक। बेकिंग सोडा फॉर एक्सट्रूजन की तरह यूज किया जाता है। अब ये यहाँ पर है कि स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए, और पहले बताइए कि ये क्यों यूज किया जाता है एज एन एंटासिड, बताइए क्यों यूज किया जाता है इट इज एज एन एंटासिड। एज एन एंटासिड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वो एक बेस है। बेसिक है, इट इज बेसिक इन नेचर। बिकॉज इट इज अ बेसिक सॉल्ट, बिकॉज इट इज अ बेसिक सॉल्ट, ये एक बेसिक सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड के साथ होता है। सेकंड, एज अ सोडा एसिड फाइब्रेशन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, and sodium hydrogen carbonate when react with, it is a bicarbonate, when it react with acids it will produce carbon dioxide, salt plus carbon dioxide plus water, and this carbon dioxide is used for extinguishing fire because the molar mass of calcium hydroxide, sorry, carbon dioxide is 44, which is heavier than oxygen. Oxygen molar mass is 32, so it is heavier, so it will replace that one, जो भारी चीज होती है वो नीचे आती है, तो it will replace that oxygen from that one and take its place, and that's why it is extinguished fire. Why it is used to make bread spongy, the same reason, because it बेकिंग produce सोडा carbon dioxide. बेकिंग सोडा किसी टार्टारिक कोई से टार्टारिक एसिड से मिलकर और वो एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से वो बहुत हाँ, फ्लफी हो जाता बेकिंग, या वेरी गुड, बेकिंग सोडा टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गेट ट्रैप्ड इनसाइड द डो, वो उसके है। अंदर वहीं पे भरती है। When we kept it in the oven, that carbon dioxide due to heat escape out and leaving that space empty, वो जगह खाली रहती है, and that's why it becomes spongy. ओके, हाँ। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, स्टेट द रीजन फॉर दिस स्टेटमेंट, टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, चलो ये तो फालतू की तो भाई फालतू कर लोगे ना। अमोनिया, अच्छा देखो, अमोनिया डू नॉट कंटेन एनी OH नेगेटिव आयंस, उसके पास अमोनिया बेस है लेकिन उसके पास कोई हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल मींस OH, OH ग्रुप तो है नहीं। जैसे हम लोग बेस किसको मानते हैं, जैसे NaOH को माना हमने बेस, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेस माना क्योंकि OH ग्रुप है, लेकिन अमोनिया के पास ऐसा नहीं है, अमोनिया के पास तो नहीं है। अमोनिया के तो इनफैक्ट एसिड H प्लस H हाइड्रोजन एटम से, तो इट मस्ट बी बिहेव लाइक एन एसिड। बट व्हेन वी आर एडिंग अमोनिया टू वाटर, व्हाट इट हैपेंस, it it accept the H plus ion from water, it accept the H plus ion and form ammonium ion, and hydroxide of ion of water is increased. So when something is accepting the H plus ions, कोई वाटर न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसके पास इक्वल अमाउंट में एसिडिक करेक्टर वाला H प्लस आयन और बेसिक करेक्टर वाला OH नेगेटिव आयन दोनों है, इसलिए वो न्यूट्रल है वाटर। लेकिन अगर कोई इसकी एसिडिक शो प्रॉपर्टी को शो करने वाली चीज को खत्म कर दे, किल कर दे, उसको मार दे, तो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो सिंपली OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो विल सिंपली से दैट इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन, इट विल टर्न टू बेसिक because it accept the H plus ion. So ammonia gas accept the H plus ion, accept the H plus ions from the solution. समझ आया? समझ आया? ओके। Yes or no? ओके, यस यस, ओके। So उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आगे हमें कह रहा है कि डिफाइन इंडिकेटर्स, पता है तुम्हें, दैट एनीथिंग दैट चेंजेस देयर स्मेल और दैट और कलर when added to acidic or basic solution we called it acid base indicators, and नेम टू इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हाँ, right, obtained from plants, simple, we can write it actually litmus is also extracted from the lichens, LITCH, in lichens, extractions of लीचेस, lichens. लीचेस, लीचेस, हाँ, हाँ हाँ हाँ। lichens, and we togetherly called it, इसको हम लोग lichens जो है ना symbiotic relationship में रहते हैं algae और fungi के, तो lichens से ये extract होता है, it is also a natural indicators। उसके अलावा तुम टर्मरिक लिख सकते हो, क्लोव लिख सकते हो, which is a natural indicators, okay, petals of sunflowers। उसके अलावा जो हाउ विल द सॉल्यूशन फ्लोक्सीन राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेकिंग व्हेन सोडियम ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद वाटर, तो जाहिर सी बात है सोडियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है, पानी के साथ रिएक्शन करके इट विल गिव्स यू NaO, Na2O व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट विल गिव्स यू सिंपल NaOH बना देगा, प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस। सो नहीं, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा यहाँ पर, NaOH बनेगा, हाँ। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन गैस तब बनता है जब ओनली मेटल हो, ओके। सो इट विल फॉर्म NaOH, और यही NaOH बेसिक कर देगा सोल्यूशन को, तो फिनोक्सिलिन बेसिक में कलरलेस होती है, इट विल रन कलरलेस एंड रेड पेपर विल टर्न्स टू ब्लू।
It will turn blue. It will turn colorless. ग्रीन नहीं तो नहीं 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 कलरलेस नहीं, होती सॉरी है, सॉरी सॉरी सॉरी, पिंक पिंक में पिंक रहेगा। पिंक हो जाती है। हाँ हाँ, पिंक बेस में पिंक होती है, सॉरी। इट विल ओके। रिमेन पिंक। और सो एसिड में कलरलेस रहती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, जो हम लोग ले लेते हैं इसमें। जस्ट अ मिनट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के। तो अगर हम बात करें इसमें, तो देखो ये जो रिएक्शंस है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है ये वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछता है। पहले बात तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पर क्वेश्चन आएगा। देखो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। ज्यादातर हाँ मुझे क्वेश्चन पता। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में किसी एक में ऑक्सीजन दिया होगा। हाँ जिसमें ऑक्सीजन होगा, जाहिर सी बात है वो दूसरे को अपनी ऑक्सीजन देगा। तो मैंने अगर किसी को ऑक्सीजन दे दी और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो मैं क्या हूंगा? हाँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मैंने तो काम किया ना हो। तो वन विच इज कैरिंग ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर दोनों के पास कोई सब्सटेंस है कि भाई दोनों के पास ऑक्सीजन है, तो फिर उसमें आपको अलग से ट्रिक लगानी पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन डायरेक्टली तो मैं इसके पास ऑक्सीजन, इसके पास नहीं है, तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या होगा? ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग हाँ वो एजेंट। ठीक है। अब सिंपली लेकिन वी कैन लेकिन सिंपली से दैट वन। हाँ बोलो। द वन विच इज ऑक्सीडाइज इज नोन एज ऑक्सीड द ये उल्टा है साहब। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो रेड्यूस्ड होता है। तो अगर मैं पूछूं किसका रिडक्शन हुआ, तो MnO2 का रिडक्शन हुआ। किस कौन चीज ऑक्सीडाइज हुई? तो हाइड ये चीज ऑक्सीडाइज हुई। समझ आया? एक एक चीज। ओके। तो वन विच इज रेड्यूस्ड इज नॉन रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज। वो चीज वही चीज ऑक्सीडाइज होगी। और जो चीज तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। मैं भी वही कही थी कि अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रहा है, उसका जो एजेंट है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर वो रिड्यूस हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। हाँ, तो सबसे पहले एजेंट को ढूंढो। एजेंट कौन है? ऑक्सीजन है तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बस इसका उल्टा मतलब ये रिड्यूस्ड हुआ है। समझ आया? बाकी तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से, मैंने पढ़ा रखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर से कर सकते हो कि अगर किसी में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो दैट सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, और डिक्रीज हो रहा है तो मतलब रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मींस दैट सब्सटेंस इज रेड्यूस्ड। So let's have this important questions. Please complete this reaction question number 22 and 21. जल्दी से कंप्लीट करो, फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से जोहा। ये जोहा हुआ। हम्म। हो रहा है, हो रहा है। पहला वाला क्या कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कभी भी ऑक्सीडेशन मतलब हमारे पास है C2H5 OH इथेनॉल है, ठीक है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन सिंपल, ये जल रहा है। अगर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, इट विल गिव्स यू आग मीच के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा, सिंपल। हाँ, अगर इसी C2H5 OH में मैं नेसेंट ऑक्सीजन दूं, नॉन एटॉमिक ऑक्सीजन, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म ना हो, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं हो,
देन इट विल गिव्स यू ऑक्सीडेशन, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ इट विल गिव्स यू CH3COOH देगा, प्लस वाटर देगा। और ये होता है एल्केलाइन के MnO4 की प्रेजेंस में, समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट इज हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल का अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सपोर्ट से ट्रेड कराएंगे तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है जिसमें हम लोग इसको डील करते हैं, एंड दैट इज C2H5OH। एंड दिस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड डिहाइड्रेटिंग रीजन में आती है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 देता है, प्लस वाटर इसमें रिमूव हो जाएगा। जितने भी कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का एल्कीन मिलेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर को बहुत इंपॉर्टेंट तवज्जो दी जाती है, टेम्परेचर को बहुत ध्यान से दिया जाएगा, समझ आया? उसके बाद है हमारे पास जैसे CH3COH प्लस NaNaCO3, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो CH3COO Na बनेगा। जाहिर सी बात है ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये एसिड है। बहुत बार मैं बता चुका हूँ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं वो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब ये सॉल्ट तो आपको बहुत सिंपल सा पता होना चाहिए कि भाई ये तो बाइकार्बोनेट ग्रुप है, इससे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। अगर ये खाली Na होता तो क्या मिलता? कौन सा सॉल्ट मिलता? CH3CON मिलता, इथाइल सोडियम इथेनॉइट। अच्छा एक और बात, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो नाम आ भी गया यहाँ पे। इसका जो नाम है ये है सोडियम इथेनोएट। क्या नाम है इसका? सोडियम इथेनोएट। ईथ क्योंकि दो कार्बन है, इथेनोएट सोडियम इथेनोएट। अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, अगर ये रिएक्ट करेगा, दोनों Na के साथ रिएक्शन करें, C2H5ON प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसका जो नाम है दैट इज सोडियम इथो ऑक्साइड। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कहां ओके। पर सोडियम इथोक्साइड है कहां पर सोडियम इथेनॉइड है, समझ आया? डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि कहां पर सोडियम इथोक्साइड होगी और कहां पर सोडियम इथेनॉइड होगा। गॉट इट बेटा, समझ आया अच्छे से? तो एथेनॉल C2H5OH होता है ना? C2H5OH, हाँ इथेनॉल होता है। इसकी रिएक्शन अगर हमने कराई तो ये हमें सोडियम इथोक्साइड देगा, सोडियम इथो ओके। ऑक्साइड देगा प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद देखो फिर से ये मीथेन, ये इथेनॉल कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा, बैलेंस कर सकते हो बाद में। और ये क्या है? ये फिर से एसिड है और ये मेटल कार्बोनेट है। एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट हो, कोई भी हो, एक हमेशा सॉल्ट प्लस सेम सॉल्ट देगा, सेम कार्बन डाइऑक्साइड, बस इट देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ चेंजिंग इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे बैलेंसिंग में फर्क होगा। अदरवाइज सेम सॉल्ट CH3COONA प्लस CO2 प्लस वाटर आपको देगा। ठीक है। सो प्लीज टेक द स्क्रीन। फिर आप म्यूट हो। इतनी देर से मैं म्यूट होके पढ़ा रहा था तुम्हें। नहीं, अभी अभी just mute. You were saying something, right? Yeah, that's why. ओके 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 ओके। Were you saying something? नो नो, आई एम नॉट सेइंग। सो प्लीज टेक द Alright. स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन प्लीज। Okay, okay. Just one second. This is an important, and I'm saying this one that Zoha, if you want to continue for the next hour, because some of the students are here, and we are going to discuss the next important paper, that is the sample paper. Okay, we'll discuss mainly the MCQs portions, in which the most of the students are going to discuss. So at least 40 question we are going to discuss. 40 question जो तुम घर पे 1 घंटा बर्बाद कर दोगी अभी थोड़ी देर में बैठ के। सो अगर तुम करना चाहो तो यू कैन बी हियर, अदरवाइज समझ आया? अब डिसाइड करेगी, बहुत देर तक बैठेगी, सर वो मैं यूं, सर वो मैं खाना खाना था मुझे, सर मुझे भूख लग रही थी, सर मैं सर ये सारे काम, सर सर बुखार भी हो जाएगा सर अभी, हेडेक भी हो जाएगा अभी, तो सारे काम हो जाएंगे जितने होने थे ना। सर 7 बजे फिजिक्स क्लास है, that's what. ओके चलिए, यू कैन लीव। Yeah, ठीक है। यस एवरीवन, Maha, Mariam, Zainab and other students, please turn on your camera. We shall be going to discuss the very important portions of this. We shall be going to discuss the question sample paper. So just a minute.
let's discuss the sample papers and let's try how many questions you are able to do that one. In the previous class, we have discussed the two sample papers. I think two or three sample papers we have discussed. Today, we're going to discuss the third and fourth sample paper. Okay. And mainly, if we discuss the which one? The MCQ, मैं सभी से बोल रहा हूँ that everyone कि practice the जितने भी मैंने सैंपल पेपर आपको भेजे, you receive that sample papers all मिला? So Yeah, the one. प्लीज डू असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा असर्शन और रीजन की प्रैक्टिस करो, जहां भी कंफ्यूजन हो कि ये मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जितने ज्यादा, क्योंकि असर्शन एंड रीजन एक ऐसा है जिसमें इवन दो कि टीचर माइट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज दैट इज एन असर्शन एंड रीजन, उसमें रीजन क्या हो। तो पहले उसका भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कैसे हम लोग जानेंगे कि हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो लेट्स गिव मी अ मिनट, लेट्स हैव द सैंपल पेपर फर्स्ट।